Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. Dear student, in the previous class we have discussed about atomic mass, relative atomic mass and atomic mass unit. Now let's revise the main points. First of all, atomic mass. Mass of a single atom of an element is called atomic mass. And mass of an atom in gram or kilogram is ranging from 10 raised to power minus 24 to 10 raised to power minus 22 gram. And measuring such a small masses are not only impossible but also impractical work. Therefore, it was recommended to express the masses of atom by comparing with the mass of standard atom. The atom chosen nowadays as a standard for comparison is carbon 12 because it have 12 units. Now what is relative atomic mass? The relative atomic mass of an element is the mass of an atom of an element relative to the mass of 1/12 the mass of carbon 12. Now second question is reason for taking carbon 12 as a standard. First reason is among the carbon all isotope of carbon 12 is most stable. Second, the natural abundance is 98.98%. And third reason is availability and stability of carbon compound. Fourth reason is relative atomic masses of other atom come in whole number. And then what is the unit of atomic mass unit? One atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of carbon 12 atom. And next we see the relationship of 1 AMU and gram. We see that 1 AMU is equal to the mass of one atom of carbon 12 divided by 12. And we know that atomic weight of carbon 12 is equal to 12 gram, which is equal to 1 mole, and 1 mole of anything contain Avogadro number particles. When divide 12 gram by Avogadro number, we get the mass of one carbon atom, and when we put this into the above formula, we get the value of 1 AMU. Now these are the main points of previous lecture. Now student, in this lecture we discuss about the average atomic mass. First of all student, what is average atomic mass? By definition student, average atomic mass is the weighted average of the atomic masses of all naturally occurring isotope of an element. Dear student, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लेट्स सपोज किसी एलिमेंट को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो उसमें कुछ एटम के मासेस डिफरेंट होते हैं और कुछ के डिफरेंट होते हैं. उन एटम को हमने आइसोटोप्स का नाम दिया था. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स. अगर हम उनके आइसोटोप्स का एवरेज निकालेंगे उसकी परसेंटेज के हवाले से तो उसको हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास. इज़ दैट क्लियर? सो व्हाट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास? अगर हम सारे आइसोटोप्स उसके नेचुरल जितने भी आइसोटोप उस एलिमेंट के निकलते हैं उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास. एक्सप्लेनेशन. Dear student, most of the elements have their atomic masses in fraction. For example, if we took to the periodic table, the masses of carbon is 12.01 not 12. This is average atomic mass.
जी स्टूडेंट, आप अपनी बुक्स के अंदर पीरियाडिक टेबल अगर ओपन करें तो पीरियाडिक टेबल में हर एलिमेंट के सैंपल के ऊपर हमारे पास उसके मास लिखा जाता है और वो मास तकरीबन सब का पॉइंट्स में होता है। जैसे कि कार्बन की बात करें तो कार्बन का 12.01 होता है, 12 नहीं होता। डी स्टूडेंट, वो उनका एवरेज एटॉमिक मास होता है। वो उनके सारे आइसोटोप्स का एवरेज निकाल के जो मास आता है उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास उन सारे आइसोटोप के मासेस का एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। फिर हमने देखा कि पीरियाडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके मासेस पॉइंट्स में होते हैं और वो पॉइंट्स में इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनका एवरेज लिया जाता है। ओके, और ये एवरेज डी स्टूडेंट दो रीज़न की वजह से होता है। नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड सेकंड, नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। डी स्टूडेंट, एक तो आइसोटोप्स, कितने आइसोटोप्स उस एलिमेंट के हैं, लेट्स सपोज 3 है, 4 है, 5 हैं। सेकेंडली उस आइसोटोप्स की अबंडेंस कितनी है, वो कितने परसेंट निकलता है। लेट्स सपोज मैं ज़मीन से सोडियम निकालता हूँ तो सोडियम के लेट्स सपोज 3 आइसोटोप्स हैं, 3 में से एक का मास 22 है, एक का 23 है, एक का 24। 23 कितने परसेंट में निकलता है, 24 कितने परसेंट में निकलता है और 25, इनका एवरेज निकालेंगे तो बनेगा एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला है। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस, परसेंटेज में वो कितना आपके पास निकलता है, डिवाइड बाय 100 प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100। डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला आपने याद रखना है। याद रखिएगा, लेट्स सपोज एक एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं तो आप इस फार्मूले को 2 टाइम लिख सकते हैं। अगर 3 हैं तो प्लस डाल के नेक्स्ट आइसोटोप एवरेज एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप लिखेंगे। 4th हैं तो फिर प्लस डाल के 4th लिखेंगे। ओके, बहरहाल दिस इज अ जनरल फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, यहाँ पर पहले आइसोटोप का मास पुट करेंगे, उसकी अबंडेंस कितनी है, कितने परसेंट निकलता है, उसकी अबंडेंस परसेंटेज में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 100 पर, प्लस फार्मूले वाला। फिर सेकंड आइसोटोप्स का मास कितना है और उसकी अबंडेंस कितनी है, अबंडेंस यहाँ लिखेंगे और ये 100 फार्मूले वाला। ओके, तो इस तरह हम किसी भी आइसोटोप्स के एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करें। अगर हम क्लोरीन को ज़मीन से या लेट्स सपोज एक्सट्रैक्ट करवाते हैं किसी भी एलिमेंट से क्लोरीन को, तो क्लोरीन हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स निकलते हैं। एक क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास होता है 35 और एक क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास होता है 37। ओके, दीज टूज आर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन 35 की परसेंटेज 75% होती है और क्लोरीन 37 की परसेंटेज 25% होती है। ये है हमारे पास मासेस और ये है इसके परसेंटेज अबंडेंस। इसका मास ये और इसकी परसेंटेज अबंडेंस, while these are atomic number. Okay, now how to calculate the average atomic mass? This is the formula of average atomic mass. Average atomic mass is equal to atomic mass of first isotope. फर्स्ट आइसोटोप का मास क्या है, क्लोरीन 35, तो क्लोरीन 35 मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज कितनी है
डिवाइड बाय 100, बीच में प्लस, फिर सेकंड आइसोटोप इसकी अबंडेंस डिवाइड बाय 100। पहले की एटॉमिक मास था 35 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज कितनी है 75, तो 75 लिख लिया। ये 100 फार्मूले वाला, बीच में प्लस, 37 इसकी एटॉमिक मास, इसकी परसेंटेज अबंडेंस इंटू 25% डिवाइड बाय 100। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मास आता है स्टूडेंट वो होगा एवरेज एटॉमिक मास। सो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज़ 35.50। तो स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के ऊपर सिंबल के ऊपर ये 35.50 अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये उसका एवरेज एटॉमिक मास है। ओके, एंड एक चीज़ आपने नोट करनी है स्टूडेंट, एवरेज एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास AMU। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपने ख़ुद घर में सॉल्व करना है, वर्कशीट के ऊपर इसको सॉल्व करना है, और इसके साथ साथ आप यूनिट 1 के एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, सेम इसी पैटर्न से ये भी सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं केमिकल फार्मूला को, उसके बाद इसकी टाइप्स को देखते हैं। डिफिनीशन: द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ a molecule of a compound is called chemical formula। डी स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को सिंबल से शो करना एक्चुअली केमिकल फार्मूला कहलाता है। ये तो शुरू में भी आपने पढ़ लिया होगा कि दो एलिमेंट के जो उसके सिंबल होते हैं, उनके सिंबल को कलेक्ट करके अगर हम लिखते हैं along with their ratio तो उसको बोलते हैं केमिकल फार्मूला। सो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को सिंबल से शो करना केमिकल फार्मूला कहलाता है। सेकंड, इसकी डेफिनेशन: इट इज़ एन एब्रीवेशन यूज फॉर द फुल नेम ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल। कंपाउंड के फुल नाम को सिंबल की मदद से एब्रीवेट करना एक्चुअली क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूला। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को उसके सिंबल से शो करना केमिकल फार्मूला कहलाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो केमिकल फार्मूला होता है ये हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, द टाइप ऑफ एटम एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर किस टाइप के एटम है या कौन से एलिमेंट के एटम हैं। ओके, पहली इंफॉर्मेशन क्या देता है? द टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। उस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट आए हुए हैं या उस कंपाउंड के अंदर किस एलिमेंट के एटम हैं। सेकंड, द रेशो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। उस कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एटम आए हुए हैं उनकी रेशो कितनी है। ओके, सो केमिकल फार्मूला हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है। फर्स्ट वन, टाइप ऑफ एटम्स, एंड सेकंड, द रेशो ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। डी स्टूडेंट, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला हमारे पास दो किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन एम्पिरिकल फार्मूला और सेकंड वन मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहला हम एम्पिरिकल फार्मूला को देख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला विच शो द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम ऑफ different element present in a compound। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट के एटमों की रेशो अगर कोई बताए
तो वो फार्मूला हमारे पास होगा एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो एटम्स के एलिमेंट की रेशो कोई फार्मूला हमें बताए तो उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो हमें दो एलिमेंट्स किसी कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट की रेशो अगर बताए तो उसको बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल से आपको इजीली क्लियर करवाता हूँ स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6। मुझे ये बताएं इन दोनों एलिमेंट की रेशो आपस में क्या है? 6 एटम इसके हैं तो 6 इसके हैं। सिंपल मैं कह सकता हूं कार्बन और हाइड्रोजन की यहां पर रेशो क्या है? 1:1। सो इस फार्मूले को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि CH, ये CH जो है हमें ये बता रहा है कि इन दोनों एटम की रेशो क्या है? 1:1। तो इस फार्मूले को बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एक और एग्जांपल देता हूं, C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब मुझे अगर इन तीनों एटम की रेशो लिखनी है तो इस तरह लिख लूंगा, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6 1H2O1, ये रेशो है C1H2O1। दिस फार्मूला इज नाउ द सिंपलेस्ट फार्मूला विच शो the ratio of different element in a compound. Okay, now this formula is called empirical formula. Okay, empirical formula different atom के बीच में हमारे पास रेशो बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर, ये नहीं बता रहा कि 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है, इस तरह नहीं बता रहा। सिर्फ ये बता रहा है कि अगर कार्बन क्या एक पार्ट है तो हाइड्रोजन के 2 पार्ट होंगे, और अगर हाइड्रोजन के 2 पार्ट है तो ऑक्सीजन के 1 पार्ट होगा। रेशो बता रहे जस्ट। ऐसा फार्मूला जो हमें सिर्फ रेशो बताए एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। आई होप एम्पिरिकल फार्मूला इज क्लियर। नाउ एक्सप्लेनेशन। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोइंग द करेक्ट रेशो बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। याद रखिएगा, एम्पिरिकल फार्मूला करेक्ट फार्मूला होते हैं, रेशो हमें करेक्ट बता रहा होता है। ऐसा नहीं है कि एम्पिरिकल फार्मूला इज रॉन्ग फार्मूला, इट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच शो द करेक्ट रेशो बिटवीन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। दो एग्जांपल जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की बेंजीन वाली। द एक्चुअल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। Benzene has the sample ratio of 1:1, so its empirical formula is now CH. ओके, अगर इसकी रेशो देखें तो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो 1:1 है, तो इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हैं CH। नाउ CH इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, इसकी रेशो सिंपल क्या बनती है? C1:2:1। सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा? CH2O। 1 को हमेशा लिखा नहीं जाता, इसलिए CH2O। नाउ CH2O इज द एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला क्लियर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत ही इजी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। यहाँ पे एलिमेंट लिखना मिस हो गया मुझसे। मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होंगे, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है।
H2O लिखते हैं, तो इस तरह H2O जो होगा ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको कोई फार्मूला उसके नंबर ऑफ एटम बताए तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर हमें नंबर ऑफ एटम्स बताता है। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ये हमें ये बता रहा है कि इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन अगर हम देखें तो ये हमें ये बताता है कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन हैं। सो दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह डिराइव करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिराइव करने के लिए हमें सिंपल एक फार्मूला चाहिए होता है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको ये फार्मूला रिक्वायर्ड होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। कोई भी कंपाउंड है उसका आप एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे तब आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब N की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी आ सकती है। N की वैल्यू कहाँ से आती है उसके लिए एक और फार्मूला आपको रिक्वायर्ड होता है, वो है आपके पास स्टूडेंट N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। N की वैल्यू जो है आपको मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, उस मॉलिक्यूल का वज़न कितना है जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, और इसका एम्पेरिकल फार्मूला का जो वज़न है ये स्टेप N की वैल्यू जो होती है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल N की वैल्यू बेंजीन के लिए हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की और इसकी वैल्यू आ गई 6। ओके, N की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली की जाती है। N की वैल्यू लेट्स सपोज बेंजीन के लिए आ गई 6। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। N की जगह 6 पुट करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला CH, एम्पेरिकल फार्मूला CH होता है ना बेंजीन का, तो CH पुट करेंगे। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास केमिकल फार्मूला और टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। एक बार फिर हम आज के लेसन के मेन पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस किया। नाउ व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ naturally occurring isotope of an element. Second, average atomic mass depend upon number of isotopes, and second, natural abundance of isotopes. Second, formula of average atomic mass. Average atomic mass can be calculated by using formula that is average atomic mass is equal to atomic mass of first isotope into its abundance divided by 100 plus atomic mass of second isotopes into its percentage abundance divided by 100. Third is chemical formula. What is chemical formula? The symbolic representation of a molecule of a compound is called chemical formula. A chemical formula tells us, number 1, the type of atom present in a compound, number 2, the ratio of different atoms present in a compound. There are two types of empirical formula. First one is empirical formula. Empirical formula is the simplest formula which show the smallest whole number ratio of atoms of different element present in a compound. Next is molecular formula. Molecular formula show the actual number of atom of element present in a molecule of a compound.
Point number 6, derivation of molecular formula. Molecular formula is derived from empirical formula, that is molecular formula is equal to n into empirical formula, while the value of n is derived experimentally. These are some of the main points of today's lecture. Now student, come to the homework. First of all student, write whole lecture on worksheet. Second, solve the two question which are given in the lecture. लेक्चर में 2 क्वेश्चन आपको एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड बताएं जिनको आपने सॉल्व करना है वर्कशीट पे ही, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आज के लेक्चर में आपको हर पॉइंट क्लियर हो चुका है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट अनक्लियर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।